Welcome back, students. This is the Q&A session 13. The topic is inelastic collision और जो चैप्टर है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी. Now, before starting with this question, I will just give a brief description of inelastic collision. So, inelastic collision में क्या होता है? So I will be just writing the main points here. In the जो previous sessions हमने किए थे उसमें हमने इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिटेल में पढ़ा था. But इस सेशन में I will be just giving a very brief description of inelastic collision before starting with this question. So inelastic collision में क्या होगा? 3 important points को लिख रहा हूँ. Total linear momentum is conserved. पहला पॉइंट है, that is the total linear momentum before the collision is equal to the total linear momentum after the collision. Second point है कि the total energy is also conserved. और जो third point है, the third point is the total kinetic energy before and after the collision. The total kinetic energy before and after the collision are not equal. तो पहला पॉइंट है कि जो द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. दूसरा है द टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन्स आर नॉट इक्वल. So these are the 3 important points which I just wanted to tell you in this session, and these 3 points are applicable for this inelastic collision. तो inelastic collision में ये तीनों पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं. पहला, लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा, दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज विल रिमेन द सेम. टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन वो इस केस में बराबर नहीं होते हैं. दे आर नॉट इक्वल. इलास्टिक कोलिजन में बराबर होते हैं. Elastic collision में the total kinetic energy before and after the collision are equal. The total linear momentum is conserved and the total energy is also conserved. ठीक है? In the elastic collision, the total linear momentum is conserved, the total energy is also conserved, and the total kinetic energy before and after the collisions are equal. So this was a short description about the inelastic and the elastic collision. Now, based on these 3 points, we will be able to solve this question. Now, here there is a body of mass m. It is moving with a velocity v, and it collides with a stationary body. एक stationary body से जाके वो collide कर जाता है और उस बॉडी वो उस बॉडी के जो मास है वो m है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. और कोलिजन के बाद में जो पहली ये जो बॉडी है, दैट इज द फर्स्ट बॉडी, इट मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन. और सो नाउ इन द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मास इफ द कोलिजन इज इनइलास्टिक. तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में. v, फर्स्ट ऑप्शन इज v, second option is root 3v, third option is 2 divided by root 3 into v, and the fourth is v divided by root 3. So अभी हमें इसका जो आंसर निकालने के लिए I will be considering, let us first of all assume, let us consider, पहला पॉइंट है, let us consider that
that the bodies are moving in say in XY plane. मैंने ये मान लिया है कि ये जो बॉडीज, ये दो बॉडीज हैं, दिस बॉडी विच इज मूविंग द वेलोसिटी v और जो आपकी स्टेशनरी बॉडी, ये दोनों जो है दे आर मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन. पहला चीज तो मैंने ये मान लिया. सो अगर एक्स वाई प्लेन है, सो आई विल बी जस्ट नाउ लेट अस से कंसीडर दैट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया. सो a body of mass m is moving with a velocity v and it collides with a stationary body. Now we do not know किस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही है. ये बॉडी किस डायरेक्शन मूव कर रही है मेरे को नहीं पता. सो बट कंसिडरिंग दिस एक्स वाई फ्रेम, मैं ये मानता हूं, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जो स्टेशनरी बॉडी है ना, ये यहाँ पे ओरिजिन पे है. लेट अस से वी कैन अज्यूम इट. दिस इज वन केस. This is one case by which I will be able to solve this question. Now, let us consider ये जो body, जो first body है, ये it is moving along the x axis. तो मैं क्या, let us say this body is moving along this x axis और ये हो गया इसका direction. Let us say it is moving in this direction. And इसका velocity हो गया, इसका mass है आपका body का m और velocity v है. ठीक है, और ये इससे कोलाइड कर जाती है. दिस इज द, ये जो है आपकी, दिस इज द स्टेशनरी बॉडी, ये यहां पर पोजिशनड है. ठीक है, तो इसमें ये लिखा हुआ है आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन. मतलब ये अगर इसकी डायरेक्शन है तो ये बॉडी या तो परपेंडिकुलर, मतलब है कि दिस बॉडी विल मूव इन द वाई डायरेक्शन. वाई में या तो इधर जा सकती है या इधर जा सकती है. तो आई एम नाउ कंसिडरिंग दैट दिस बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉडी, आई हैव कंसिडर्ड दैट दिस बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस वाई डायरेक्शन. ठीक है, और नाउ आप इसकी जो वेलोसिटी है आफ्टर द मूव्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इसमें एक है विद, इसमें एक with a velocity of, इसमें I have missed it, it is written with a velocity of v by root 3, v divided by root 3. ये था. After this the collision, this first body moves in a direction perpendicular to the direction perpendicular to the initial direction of motion with a velocity of v by root 3. तो अब इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई आपकी v divided by root 3. ठीक है, so now we have to find the velocity of the second mass if the collision is inelastic. तो inelastic collision में हम पहला चीज तो यह है कि in all the collisions, कोई भी collision होता है उसमें जो total linear momentum है वो conserved है. तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ कोलिजन के बाद में ये जो स्टेशनरी बॉडी है, इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. बट अगर मैंने ये एक्स वाई फ्रेम लिया हुआ है तो ये बॉडी अगर किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, बट उसके दो कंपोनेंट्स हमेशा होंगे. उसके वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उसके दो, हमेशा दो होंगे. दैट इज वन, इट कैन बी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन विल बी अलोंग द वाई एक्सिस. तो हम ये मान के चलते हैं आफ्टर द कोलिजन, इफ आफ्टर द कोलिजन the velocity of second body is v dash. मैंने यहाँ पर जो वेलोसिटी स्टेशनरी बॉडी की कोलिजन के बाद में v dash ले रही है. तो if after the collision the velocity of the second body is v dash, then
then v dash will be equal to under root v dash x square plus v dash y whole square, where vx dash is the component of velocity along the x-axis and vy dash is the component of, let us say, v dash along y-axis. अगर स्टेशनरी बॉडी का वेलोसिटी v डैश लिया है मैंने, तो v डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v x, दैट इज v डैश x स्क्वायर प्लस v डैश y स्क्वायर, वेयर v x क्या है, दिस ये इस वेलोसिटी v डैश का इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज v डैश अलोंग द x एक्सिस. अलोंग द x एक्सिस इसका अगर v डैश x है और अलोंग द y एक्सिस अगर इस वेलोसिटी का जो कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस वो अगर आपका v y डैश है, तो हम ये लिख सकते हैं कि v डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v डैश x का होल स्क्वायर प्लस v डैश y का होल स्क्वायर, वेयर v डैश x जो है दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v डैश अलोंग द x एक्सिस एंड v डैश y इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी v डैश अलोंग द y एक्सिस. ठीक है, सो ये हम यहां पर लिख लेंगे एक छोटा सा कि v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट v डैश x होल स्क्वायर प्लस v y, तो v डैश y होल स्क्वायर. ये एक इंपॉर्टेंट है. अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप होगा, यहां पर जो v डैश है, दिस इज द v डैश क्या है, v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी बॉडी आफ्टर कोलिजन. बॉडी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज we will since we know that the total linear momentum is conserved, so what we will do is we will first of all equate the total linear momentum along the x direction and then we will equate the total linear momentum along the y direction. So x direction में क्या हुआ, x डायरेक्शन में जो बॉडी फर्स्ट बॉडी है इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, तो इनिशियल मोमेंटम टोटल दिस मोमेंटम बिफोर द कोलिजन क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू mv प्लस दिस बॉडी इज स्टेशनरी हो गया, सो इसका मोमेंटम जीरो हो गया. एंड आफ्टर द कोलिजन पहली बॉडी इज मूविंग अलोंग द y डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो गया, सो m इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस इसका जो है जो स्टेशनरी बॉडी है इसका मैंने लिया था जो जिस x डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट इज आई हैव टेकन एट v डैश x एंड दिस v डैश क्या है, v डैश इज द वेलोसिटी ऑफ द स्टेशनरी बॉडी आफ्टर द कोलिजन. और इस वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, वो आपका v डैश x लिया मैंने. तो एक तो इक्वेशन ये बन गई पहली इक्वेशन. अब हम लेंगे वी विल इक्वेट द टोटल लिनियर मोमेंटम अलोंग द y डायरेक्शन. तो y डायरेक्शन में y डायरेक्शन में जो फर्स्ट बॉडी का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, सो m इंटू जीरो हो गया. इसका क्या होगा, इसका जो स्टेशनरी बॉडी है इसका भी जीरो हो गया. ठीक है, नाउ वी विल अब इसका जो है जो फर्स्ट बॉडी है नाउ इट इज
moving in this direction, that is let us say I have considered that this body is moving in this y direction as indicated by this arrow. अब इसकी velocity after the collision is v root 3 है, तो ये हो जाएगा मोमेंटम इसका क्या हुआ m v अपॉन रूट 3. ठीक है. Now since the total linear momentum is conserved, so x डायरेक्शन में हमने linear momentum को इक्वेट कर दिया. y डायरेक्शन में भी अगर मोमेंटम आपका हमें इक्वेट करना है, मींस द टोटल मोमेंटम इन द y डायरेक्शन शुड बी इक्वल. तो इधर इस डायरेक्शन में अगर मोमेंटम आपका हमने निकाल दिया, ठीक है, सो डेफिनेटली अब ये जो बॉडी स्टेशनरी बॉडी है, इसका जो मोमेंटम होगा, और यू कैन से सिंस द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो ये जो बॉडी है दिस विल बी, इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा along this y axis, this will be pointing in the downward direction. ठीक है ना. सो ये हो जाएगा आपका इंटू एम वी वाई डैश. ठीक है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई. ये माइनस साइन क्यों लिया? बिकॉज अगर ये बॉडी फर्स्ट बॉडी जो है ऊपर जा रही है, ठीक है, और अगर इसका जो दिस वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है v डिवाइड बाय रूट 3, तो दूसरी बॉडी जो है, बिकॉज द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, सो ये जो स्टेशनरी बॉडी है इसका जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड. अगर ये डाउनवर्ड है तो ये, अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया है वेलोसिटी, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका हो जाता है. यहां से हमको दो चीजें मिलती हैं. पहली चीज है कि v डैश x इज इक्वल टू v, फर्स्ट इक्वेशन से, एंड सेकेंड थिंग है यहां से आप देखेंगे कि v डैश y जो है, बिकॉज ये दोनों जीरो हो जाते हैं, दिस इज इक्वल टू v अपॉन रूट 3. ये आपकी फोर्थ हो गई. ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमको जो वी हैव टू इक्वेट द टोटल लीनियर मोमेंटम अलोंग द x डायरेक्शन एंड द y डायरेक्शन. क्यों? बिकॉज ये बॉडी, कोई भी बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन मूव कर रही है, इसके दो कंपोनेंट हमेशा होंगे, दैट इज वन विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन विल बी अलोंग द वाई एक्सिस. तो अभी हमने एक्स एक्सिस के अलोंग जो है जो लीनियर मोमेंटम है उसको इक्वेट किया, और वाई डायरेक्शन में जो है आपका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमने इक्वेट किया. टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, मतलब मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन. तो वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम हुआ वो इस डायरेक्शन में आ गया. Due to this first body is moving in this direction as indicated by this arrow. Now since the total linear momentum is conserved, therefore the second body का जो velocity component है, it will be acting in the opposite direction. Opposite direction में किया तो ये velocity component आपका माइनस हो जाएगा. ठीक है, so initial momentum before the collision, that is total initial momentum before the collision is equal to the total total linear momentum after the collision. This is the total this linear momentum before the collision, and this is the total linear momentum after the collision along the y direction, and this is the total linear momentum before the collision along the x axis, and this is the total linear momentum along the x axis after the collision. So this is the first equation. और यहाँ इन दोनों इक्वेशन से हमको ये दो टर्म्स मिल गए हैं. तो अब हमें इस स्टेशनरी बॉडी की जो वेलोसिटी निकालनी है, तो वो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे. दैट इज यहाँ पर जो vx है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, vx v डैश x इज इक्वल टू v, एंड v डैश y जो है दिस इज इक्वल टू v अपॉन रूट 3. So v dash, which is the velocity of the stationary body after the collision, this will be equal to v dash x जो है that is equal to v, so ये v स्क्वायर हो गया प्लस ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 3, so this is equal to 3v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, that is 4v स्क्वायर अपॉन 3 अंडर रूट. So v dash
is equal to 2v upon root 3. ठीक है, so the correct option is C. तो यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये है कि यू हैव टू इक्वेट द टोटल लीनियर मोमेंटम along the x axis and the y axis. और कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, दैट इज द टोटल लीनियर मोमेंटम is conserved, that is the total linear momentum before the collision is equal to the total linear momentum after the collision. Second important point, after the collision this first body is moving in this direction, ठीक है, as indicated by this arrow. So since the total linear momentum is conserved, therefore the total linear momentum along, if I am taking this total linear momentum along the y direction, तो अगर फर्स्ट बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, मतलब इस फर्स्ट बॉडी का जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो अगर इस डायरेक्शन में है, तो जो ये जो स्टेशनरी बॉडी है इसका जो कंपोनेंट होगा दैट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन वो आपका ऑपोजिट होगा, ठीक है. तो अपोजिट होने के जब होगा तो इसका अगर वेलोसिटी है आपका v डिवाइड बाय रूट 3, तो इसकी जो वेलोसिटी है ये हमने पॉजिटिव है तो हम इसकी वेलोसिटी को लेंगे नेगेटिव. सो कंसीडरिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स हमने जो है फाइनली जो है वी हैव कैलकुलेटेड द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकेंड बॉडी और दिस स्टेशनरी बॉडी विच इज इक्वल टू 2v अपॉन रूट 3. So thank you very much for joining this session, and in the next session I will be again coming up with a question which is based on collision. So thank you very much. Have a nice day.